ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। PPSC ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ PPSC ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ PPSC ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PSPCL ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ MCQ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MCQs ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ RBI ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬਿਕਮਸ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹਬ? ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮਸ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹਬ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? RBI ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨਸ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨਸ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਦਸੰਬਰ। 3 ਦਸੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ BSF ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। PDFs ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। PDF ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ PDFs ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਡੇਜ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪੇਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਥਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ BSF ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇ। 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਦਸੰਬਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਚੇਤੀ ਕਿਸ ਖੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਚੇਤੀ ਕਿਸ ਖੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਟੈਟਿਕ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ,
ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਗੇਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਓਬਿਚੁਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਵਾਰਡ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਚੇਤੀ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। नेक्स्ट है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने मिलके एमएसएमईज़ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ਦੋਨਾਂ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਲਈ? ਟੂ ਟੀਚ ਅਬਾਊਟ MSMEs ਦੇ ਲਈ, MSMEs ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, MSMEs ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, MP मध्य प्रदेश। ठीक है जी। इस तो इलावा MSME मिनिस्टर कौन ने? नारायण राणे MSME मिनिस्टर ने। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है MSME मिनिस्ट्री। नारायण राणे मिनिस्टर ने। राज्यसभा MP ने, यह राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर MP की ही गल करते हैं, MP के चीफ मिनिस्टर, MP के गवर्नर पता होने जरूरी ने। ईजी क्वेश्चंस ने, यह याद होने चाहिए ने। ठीक है, स्टैटिक दे विच जो सब तो बेसिक चीज़ है वह चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स ने स्टेट्स के, तो यह जरूर पता होने चाहिए ने। आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है भारत के मौसम विभाग के अनुसार, भारत वल वध रहे चक्रवाती तूफान जवाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करेगा। बेसिकली एक साइक्लोन है, जो आप डिस्कस करते होंगे कि IMD इंटरनेशनल बाद डिस्कस करते हैं। पहले इंडियन की गल करते हैं। इंडियन मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इंडियन मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये की करता है कि इसने की कराया डिफरेंट कंट्रीज़ दे जो डिफरेंट तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, इंटरनेशनल लैवल्स के उत्ते उन्होंने नाम रखे जाते हैं। जो इंडियन ओशन रिम एसोसीएशन के विच आते हैं, इंडियन ओशन के विच आते हैं, उन्होंने एक कंट्रीज़ की एसोसीएशन है इंडियन ओशन रिम एसोसीएशन। इस दे विच जो तूफान आते हैं उन्होंने नाम डिफरेंट कंट्रीज़ द्वारा रखे जाते हैं। ठीक है, वो चूज़ कर ले जाते हैं कि यह नाम इस कंट्री का चूज़ कर लिया गया है, सीरियल नंबर वाइज उन्होंने चूज़ कर लिया जाता है। ठीक है जी, जो तूफान पहले आता उसका नाम वो रख दिता जाता है। तो उस हिसाब के नाल जो जवाद नाम का साइक्लोन आ रहा है वो कित्थे कित्थे आएगा? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इंडिया की बेसिकली बे ऑफ बंगाल दे विच यह देखा जा रहा है और इफेक्ट कर रहा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। क्वेश्चन डायरैक्टली पूछा जाता है कि इसका नाम किस कंट्री द्वारा रखा गया। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आप कई साइक्लोन्स डिस्कस किए ने, चाहे गुलाब की एग्जाम्पल ले लीए, गुलाब नाम का साइक्लोन आया सी, पाकिस्तान द्वारा उसका नाम रखा गया सी। ठीक है जी, उसी तरीके नाल जवाद नाम के साइक्लोन का नाम सऊदी अरेबिया ने रखा है। किसने रखा है? सऊदी अरेबिया द्वारा जवाद नाम का साइक्लोन का नाम रखा गया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बनेगा। इसी तरीके नाल डायरैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवन कि अगर PPSC लैवल के एग्जाम की गल करते हैं तो उत्थे भी इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, तुसीं चाहो तो ओल्ड पेपर्स अगर तुसीं डिस्कस करना चाहते हो, ओल्ड पेपर्स स्टडी कर सकते हो PPSC लैवल के। ठीक है, या फिर किसी भी अगर एग्जाम की तुसीं तैयारी कर रहे हो तो उसके ओल्ड पेपर्स तुहानूं बुक मिल जाएगी गिल्स मेंटोर तो,
ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੋਕਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੋਕਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਈਕਲੋਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? किस कंट्री ने तोकते नाम का साइक्लोन का नाम रखा सी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में दसना। नेक्स्ट है, किस बैंक ने कोविड-19 कारण प्रभावित भारत की स्कूली सिक्ख्या की गुणवत्ता में सुधार करने लई मदद करने लई भारत सरकार को 500 मिलियन का कर्जा मंजूर किया? कि विच बैंक हैज़ अनाउंसड टू प्रोवाइड 500 मिलियन, 500 मिलियन डॉलर्स कौन दे रहा है, किहड़ा बैंक दे रहा है, किस दे लिए दे रहा है? इंडिया की स्कूल एजुकेशन जो कि प्रभावित हुई है, जो कि इफेक्ट हुई है ड्यू टू कोविड-19, कोविड-19 कारण जो इफेक्ट हुई है 500 मिलियन डॉलर्स दे रहे ताकि उसनू सुधारा जा सके। ठीक है जी, तो किहड़ा बैंक दे रहा है? ये दे रहा है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक तो काफ़ी ज़्यादा लोन। अगर आप गल करना डेली वांगू ADB न्यूज़ दे विच है तो इंपॉर्टेंट बनेगा ADB दे फैक्ट। इसी दे नाल बाकी बैंक्स दे रिलेटेड फैक्ट भी डिस्कस कर लेने। तो सिंपली इस तरीके नाल पेज नू डिवाइड करांगे और डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक और IMF दे विच मैंबर कंट्रीज़ कितनियां ने? मैंबर कंट्रीज़ 190। ठीक है जी, लास्ट जुड़ी कंट्री किहड़ी है? एंडोरा। ठीक है, दोनों के हैडकुआटर कितने ने? वाशिंगटन DC दे विच। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के हैडकुआटर वाशिंगटन DC दे विच। ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक के हैड डेविड मलपास और IMF की गल करते हैं। IMF के हैड कौन ने? IMF के हैड ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। IMF के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, अज के सैशन के डिस्कस करांगे। ठीक है जी, दोनों ने कदों बनाया गया सी? 1945 दे विच बनाया गया सी। ADB दे विच अगर आप गल करते हैं 68 मैंबर कंट्रीज़ ने शंघाई चाइना दे विच, शंघाई चाइना दे विच हैडकुआटर है मसत्सुगु आसाकावा। सॉरी, ADB का हैडकुआटर मैट्रो मनीला फिलीपींस दे विच, मैट्रो मनीला फिलीपींस दे विच है। मसत्सुगु आसाकावा इस दे हैड ने जो कि जापान तो बिलोंग करते हैं। मसत्सुगु आसाकावा जापान तो बिलोंग करते हैं। क्रिस्टिना जॉर्जीवा बुल्गेरिया तो बिलोंग करते हैं। डेविड मलपास USA तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इस तरीके नाल याद रखेंगे। AIIB और NDB आप पहले डिस्कस किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इस 103 कंट्रीज़ मैंबरस ने। AIIB बीजिंग चाइना के हैडकुआटर है। NDB के रिसेंटली वैसे 5 कंट्रीज़ मैंबर ने, रिसेंटली 3 कंट्रीज़ नू जोड़िया गया। कमेंट बॉक्स में भी दसना किहड़ी 3 कंट्रीज़ नू जोड़िया गया NDB दे विच। आपां पहले भी कई बार डिस्कस किया वैसे, लेकिन बहुत घट बच्चे, अगर मैं क्वेश्चन पूछदा तो बहुत घट बच्चे आंसर दिंदे ने, इस करके दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि NDB दे विच किहड़ी 3 कंट्रीज़ नू ऐड किया गया सी। ठीक है जी, अगर आप गल करते हैं NDB का हैडकुआटर शंघाई चाइना दे विच, NDB का हैडकुआटर शंघाई चाइना दे विच है। 5 कंट्रीज़ ब्रिक्स भी इस विच मैंबर ने। बाकी 3 कंट्रीज़ जो रिसेंटली मैंबर बनाई गई सी, बांग्लादेश सी, UAE सी या उरुग्वे सी। बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। इस तो अलावा AIIB के हैड जिम लिक्विन ने और NDB के हैड ने मार्कोस त्रियोजो। जिम लिक्विन चाइना तो बिलोंग करते हैं, मार्कोस त्रियोजो ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं। नैक्सट है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि सेहत मंत्रालय ने घोषणा की कि कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस भारत के किस राज्य में पाया गया। बेसिकली ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो कोविड-19 का सब तो पहले कित्थे पाया गया। पहला क्वेश्चन इस तरीके ना पूछा जाएगा तो अपना आंसर रहा सी सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया तो शुरू होया यह ओमिक्रॉन। और दूसरा क्वेश्चन कि इंडिया के पहला केस कित्थे पाया गया। इंडिया के पहला केस डिटेक्ट होया है, सॉरी होमवर्क के लिए क्वेश्चन सी, चलो मैं ही आंसर दस दिता है, कर्नाटका। ठीक है जी, इंडिया के पहला केस कित्थे डिटेक्ट होया है? कर्नाटका के। तो स्टार्ट करते हैं वन लाइनर्स रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस नू डिस्कस करांगे, उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू डिस्कस करांगे। नेक्स्ट है डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ
इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बनाए गए सी? आप डिस्कस किए सी कौन बनाए गए सी? संबित पात्रा, संबित पात्रा, SAMBIT, संबित पात्रा चेयरमैन बनाए गए इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्ट्रैटेजिक ग्रुप एडवाइजर ऑफ ओयो, ओयो दे स्ट्रैटेजिक ग्रुप एडवाइजर कौन बनाए गए हैं? आप डिस्कस किया एक ऐसा नाम जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, रजनीश कुमार, रजनीश कुमार, रजनीश कुमार जो कि SBI के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इन्हों HSBC बैंक है जो इसके एशिया वालों ग्रुप एडवाइजर बनाया गया, बोर्ड के शामिल किया गया। LNT कंपनी है लॉर्सन एंड टर्बो, लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी के भी इन्हों शामिल किया गया। उस तो बाद भारत पे दे विच शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश स्टेट है, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसके एकनॉमिक एडवाइजर के तौर पर बनाया गया, इन्हों एकनॉमिक एडवाइजर रखा गया। इस तो इलावा हीरो मोटरकॉप कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी, हीरो मोटरकॉप के बोर्ड के भी एडवाइजर के तौर पर शामिल किए गए। ठीक है जी, हुण इन्हों एडवाइजर के तौर पर ही ओयो के भी शामिल किया गया, ओयो के भी शामिल किया गया। ठीक है जी, तो डायरैक्टली नोट्स बनाने के लिए रजनीश कुमार लिख के इन्हों की जिन्नियां भी उपलब्धियां ने सारियां नोट कर लाँगे, ताकि कदे भी इन्हों का नाम अपने तो किसी भी एग्जाम के पूछा जाए आपां नूं कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, नैक्सट बुक डिस्कस की सी कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़, एक अवॉर्ड दिता गया कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ 2021। ठीक है जी, यह अवॉर्ड दिता गया इस बुक नूं नायरोजी पायनीर ऑफ इंडियन नैशनलिज्म, नायरोजी पायनीर ऑफ इंडियन नैशनलिज्म। बेसिकली जो दादा साहब दादा भाई नायरोजी सीगे उन्हों की लाइफ हिस्टरी के उत्ते बुक सी, उन्हों की बायोग्राफी सी, ये इन्हों के उत्ते जो बुक सी, इस बुक नूं अवॉर्ड दिता गया। तो इस बुक के राइटर कौन ने? इस बुक के राइटर सीगे दिनयार पटेल, दिनयार पटेल, DINYAR, दिनयार पटेल इस बुक के राइटर सी। ठीक है जी, नैक्सट विच स्टेट हैज़ वॉन गोल्ड मैडल अवॉर्ड, किस स्टेट ने गोल्ड मैडल अवॉर्ड जीते है एट 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। आप डिस्कस किया इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, इस तो इलावा इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आप डिस्कस किया, उसका 52nd एडिशन सी, एडिशनस इंपोर्टेंट बननगे। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सी, उसका 52nd एडिशन सीगा। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाना है, उसका 7th एडिशन होएगा, साइंस फेस्टिवल 7th एडिशन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 40th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, हर साल प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के विच ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस दे विच किस स्टेट नूं गोल्ड मैडल अवॉर्ड मिले, किस स्टेट नूं गोल्ड मैडल अवॉर्ड मिले? तो बिहार, बिहार नूं गोल्ड मैडल अवॉर्ड मिले। इस तो इलावा जो पार्टनर स्टेट रही सी वह भी बिहार रही सी। ठीक है जी, इस तो इलावा आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसकी फोकस स्टेट्स यूपी और झारखंड रही सी, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है जी, नैक्सट चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे वन। काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने अज के सैशन के आप डिस्कस करांगे। मंडे का सैशन है तो न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जांदियां ने, इंपोर्टेंट हो जांदियां ने, तो कुछ न्यूज़ अज डिस्कस करांगे, बाकी दी न्यूज़ नूं कल के सैशन के डिस्कस करांगे। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले अनन्या बांसल वॉन सिल्वर मेडल ऑफ इंडिया इन F20 कैटेगरी ऑफ एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स इन मनामा बहरीन। सोनू याद होएगा कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया सी एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स के बारे, एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स के बारे डिस्कस किया सी। की डिस्कस किया सी कि पहले एशियन गेम्स डिस्कस कर लेने, इस न्यूज़ को हजे एक बार साइड पर रखते हैं। सिंपली जो रिवाइज जो पहले डिस्कस किया हुआ उसको डिस्कस करते हैं कि एशिया गेम्स ने जो एशियन गेम्स 2022 2026 कित्थे कित्थे होणगियां? 2022 चाइना, 26 जापान। ठीक है जी, बेसिकली होंजो सिटी चाइना की होस्ट करेगी 22 की गेम्स नूं। 26 की गल करदा नगोया सिटी है जापान की।
ठीक है जी। इसी दे नाल 2030 और 34 डिस्कस किया सी। 2030 दोहा कतर, 34 की गल करते हैं रियाद सऊदी अरेबिया, रियाद सऊदी अरेबिया, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। इस तो इलावा आप डिस्कस कीतियां यूथ गेम्स, ये एशियन गेम्स हो गई, एशियन यूथ गेम्स। एशियन यूथ गेम्स 2021 दियां चाइना दे विच होईयां, 2025 दियां 2025 दियां होणगियां ताशकंद उज़बेकिस्तान दे विच, ताशकंद उज़बेकिस्तान दे विच, ठीक है जी। उसी तरीके नाल अगर आप गल करते हैं पैरा गेम्स दियां, एशियन पैरा गेम्स, जो एशियन पैरा गेम्स ने यह 2021 दियां बहरेन दे विच ऑर्गेनाइज कीतियां जानियां ने, बहरेन दे मनामा दे विच ऑर्गेनाइज कीतियां जानियां ने। अज इसका लास्ट दिन रहेगा। उस तो बाद आप जिन्ने मैडल्स इंडिया नूं आए ने, ये डिटेल पूरी डिस्कस कर लांगे। अज सिर्फ उसका पहला मैडल डिस्कस कर रहे हैं, अज सिर्फ आप उसका पहला मैडल डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया ने जो पहला मैडल जितया है, सिल्वर मैडल जितया, इस दे विच इंडिया ने जो पहला मैडल जितया है, सिल्वर मैडल जितया। किस गेम दे विच जितया है? शॉटपुट दे विच जितया। इंडिया ने जो मनामा बहरेन दे विच एशिया यूथ पैरा गेम्स ने, इन्हां दे विच सिल्वर मैडल जितया है। पहला मैडल जितया अनन्या बांसल ने, अनन्या बांसल सिल्वर मैडल शॉटपुट, अनन्या बांसल सिल्वर मैडल शॉटपुट, सिंपली याद रखेंगे, ठीक है। अज बेसिकली लास्ट दिन है, अज खत्म हो जाएंगे गेम्स, तो कल या परसों के सैशन के आप डिटेल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है बुक, एक इंपॉर्टेंट बुक है जो 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। इस बुक नूं किन्ना द्वारा लिखिया गया है? तो रचना बिष्ट रावल, रचना बिष्ट रावल। बेसिकली अगर गल करते हैं, ये जो इस तरीके की बुक्स आप पिछले कुछ दिनों तो डिस्कस कर रहे हैं 1971 के रिलेटिड, ये हुण ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो हुण ही क्यों रिलीज़ कीतियां जा रही हैं? तो इसका कारण है कि बांग्लादेश, याद होएगा आप डिस्कस किया सी कि बांग्लादेश है जो कंट्री है, ये 50 साल पूरे कर रही है, इसनूं बने नूं 50 साल पूरे हुए ने। 1971 दे विच बांग्लादेश बनाया गया सी, ठीक है जी। तो इसी करके आप ये भी डिस्कस किया सी स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर इस साल नूं ऑब्जर्व किया जा रहा है, स्वर्णिम विजय वर्ष, ठीक है। क्योंकि इंडियन अगर आप गल करते हैं आर्मी का काफ़ी वड्डा रोल रहा सी, इंडियन नेवी का काफ़ी वड्डा रोल रहा सी, ईवन कि इंडियन पूरी आर्म्ड फोर्सिस का काफ़ी वड्डा रोल रहा सी बांग्लादेश नूं रिकॉगनाइज करवाउण दे विच, बांग्लादेश नूं आज़ाद करवाउण दे विच, या बांग्लादेश कंट्री नूं बनाउण दे विच। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर जानी जाती सी, ठीक है जी। तो इसी करके इन्हां गल्लां दे उत्ते जो उस टाइम की हिस्टरी सी उस दे उत्ते बुक्स रिलीज़ कीतियां जा रही ने, जिस दे विचों एक इंपॉर्टेंट बनी 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास, चार्ज ऑफ द गोरखास। बुक के राइटर रचना बिष्ट रावल, रचना बिष्ट रावल। नेक्स्ट है यूएसए एंड बांग्लादेश, यूएसए एंड बांग्लादेश स्टार्टेड 27th एडिशन ऑफ कोऑपरेशन अफ्लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, 27वां एडिशन कोऑपरेशन अफ्लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग नाम की एक्सरसाइज, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई बे ऑफ बंगाल दे विच, जिसका नाम है कैरेट, कैरेट। शॉर्ट फॉर्म दे विच डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कैरेट एक्सरसाइज किस किस कंट्री दे विच ऑर्गेनाइज की जाती है? जिस तरीके नाल इंडिया किसी कंट्री के नाल एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए की ही अगर आप गल कर लेने तो इंडिया यूएसए अजय वॉरियर, ठीक है, एक्सरसाइज है, ठीक है। एक किस कंट्री के नाल है? यूएसए के नाल, या किस कंट्री के नाल है? उस तरीके नाल युद्ध अभ्यास इंडिया की किस कंट्री के नाल? अजय वॉरियर इंडिया की किस कंट्री के नाल है, ठीक है। अजय वॉरियर इंद्रधनुष हो गया, ये इंडिया की यूके के नाल एक्सरसाइज ने, ठीक है। इस तरीके नाल युद्ध अभ्यास होगी, ये इंडिया की यूएसए के नाल है, ठीक है। बांग्लादेश के नाल, बांग्लादेश के नाल संप्रीति एक्सरसाइज है, संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया की बांग्लादेश के नाल है। तो इस तरीके नाल पूछ लिया जाएगा कैरेट एक्सरसाइज, कैरेट एक्सरसाइज यूएसए की किस कंट्री के नाल है या बांग्लादेश की किस कंट्री के नाल है,
ठीक है। इस द 27th एडिशन बे ऑफ बंगाल दे विच ऑर्गेनाइज किया गया, याद रखेंगे। फुल फॉर्म हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर रहे हैं। कोऑपरेशन अफ्लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, गीता गोपीनाथ के बारे हर एक ने सुनिया होएगा। रीसेंटली आप इन्हों का नाम डिस्कस किया, क्यों डिस्कस किया? ये चीफ इकनॉमिस्ट से IMF के। IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके बारे आप डिस्कस किया कि इसके जो चीफ इकनॉमिस्ट ने गीता गोपीनाथ, इन्होंने अनाउंस किया कि यह अपना टैन्यूअर खत्म कर रहे हैं। इन्हों के टैन्यूअर खत्म होने तो बाद ये हार्वर्ड यूनीवर्सिटी के जिथे पहले स्टडी करवाते थे प्रोफैसर से, उत्थे दोबारा प्रोफैसर के तौर पर काम करनगे, ठीक है जी। लेकिन इन्हों के टैन्यूअर खत्म होने तो बाद अनाउंस किया गया इन्हों फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरैक्टर बनाया जाएगा IMF के MD या चेयरमैन की गल करते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने उन्हें डिस्कस किया। तो इन्हों के डेप्यूटी पहली बार डेप्यूटी बनाए जाएंगे IMF दे विच, कौन बनाए जाएंगे? गीता गोपीनाथ। एक तो यह पहले इंडियन हो गए, ठीक है, एक ये पहले वूमेन हो गए, ठीक है। इस तो इलावा ये पहले पर्सन हो गए जो कि डेप्यूटी MD बनाए जाएंगे, ठीक है। तो कितना इंपोर्टेंट बन गया नाम, तुहानूं दस्सण की जरूरत नहीं है, तो सिंपली याद रखांगे फर्स्ट डेप्यूटी MD इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे कौन बनाए गए ने? गीता गोपीनाथ। बाकी IMF के रिलेटेड सारे डिटेल्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी, कि 190 मैंबर कंट्रीज़ ने, वाशिंगटन DC के विच हैडकुआटर है, 1945 के विच इसनूं बनाया गया सी। नेक्स्ट है फैडरल बैंक जिसका हैडकुआटर अलूवी कोची केरला दे विच है। केरला की जो सिटी है कोची दे विच अलूवी दे विच इसका हैडकुआटर है फैडरल बैंक का। फैडरल बैंक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, महिला मित्र प्लस फॉर वूमेन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस बैंक ने महिला मित्र प्लस वूमेन्स के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो याद रखांगे फैडरल बैंक ने। किस बैंक ने? फैडरल बैंक ने। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ने प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड सैरेमनी को कंडक्ट किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड सैरेमनी को कंडक्ट किया और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड स्टेट पुलिस को दिता गया। जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट पुलिस है, इसने केड़ा अवार्ड दिता है? प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड दिता है। केड़ा अवार्ड दिता है? प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड जीते, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके नाल पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन याद रखांगे कि किस स्टेट की पुलिस नूं प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड दिता गया? तो याद रखांगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन ने? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम मेरे माइंड से स्किप कर रहे हैं, राजेंद्र अरिकर है जो ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने। राजेंद्र आर्लेकर समथिंग नाम इन्हों का, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। इन्होंने प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड सैरेमनी को कंडक्ट किया और अवार्ड दिता स्टेट पुलिस को, हिमाचल प्रदेश की स्टेट पुलिस को। नेक्स्ट है 4th दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक। एक दिन ऑब्जर्व करना शुरू होया इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशनस द्वारा आप पहले जो इसनों पहली बार डिक्लेयर किया गया सी, उस टाइम भी डिस्कस किया कि पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक ऑब्जर्व किया गया। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक ऑब्जर्व किया गया यूनाइटेड नेशनस द्वारा 2019 के विच इसकी शुरुआत की गई, ठीक है जी। इस साल भी ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक। किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो याद रखांगे 4th ऑफ दिसंबर। इंटरनेशनल नेवी डे 4th दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल नेवी डे बेसिकली कह सकते हैं कि नेवी तो अपनी काफ़ी टाइम पहले बनाई गई सी। नेवी की अगर आप गल करते हैं, रॉयल नेवी के नाम तो जानी जाती सी, ब्रिटिश दे एरा दे विच बनाई गई सी। लेकिन
4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਵੀ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 50th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜੋ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਡੈਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇसी ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਵੀ ਡੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 137th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਫੋਰਚੂਨ ਇੰਡੀਆ 50 ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਲਿਸਟ ਦੀ 50 ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੂਮਨਸ ਲਿਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, USA ਬੇਸਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 50 ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੂਮਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ ਸੌਮਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਡਰੇ ਔਜ਼ਲੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 2 ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਵਾਰਡ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਬਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ 2 ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਬਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂ ਟੌਂਬ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਬਤਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਟੌਂਬ ਵੀ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਮਾਯੂ ਟੌਂਬ ਔਰ ਬਤਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਟੌਂਬ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ? ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਬਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਬਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂ ਟੌਂਬ ਔਰ ਬਤਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਟੌਂਬ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਬਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਬਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ agreed to a 4-pronged approach to discuss initiatives on food and energy security to help mitigate Sri Lanka's crisis during a 2-day visit by Sri Lankan Finance Minister Basil Rajapaksa in New Delhi। ठीक है, इसका मतलब की है बेसिकली जो श्रीलंका कंट्री ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੋ ਵੀਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਬਨ ਟੋਟਾ ਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜੋ ਪੋਰਟ ਹੈ ਹੰਬਨ ਟੋਟਾ ਪੋਰਟ, ਇਸ ਨੂੰ
पहले डेवलप करने के लिए चाइना ने फंडिंग दी, डेवलप होने तो बाद चाइना ने अपनी फंडिंग वापस मंगी तो जो श्रीलंका नहीं दे सकिया तो हंबन टोटा पोर्ट नूं 100 सालों के लिए लीज़ ते ले लिया गया चाइना द्वारा। ठीक है, यानी कि हंबन टोटा पोर्ट ते पूरी तरीके नाल कब्जा हो गया चाइना का। पोर्ट कित्थे दा? श्रीलंका का। तो उसी तरीके नाल हुण डिफरेंट तरीके के लोन्स चाइना द्वारा श्रीलंका नूं दिते गए। हुण जदों पे ऑफ नहीं कर सक रहा श्रीलंका, तो श्रीलंका दे विच इकनॉमिक क्राइसिस आ गए ने। श्रीलंका दे विच इकनॉमिक क्राइसिस देखे जा रहे हैं, जिस करके उत्थे दे लोकां नूं फूड दे विच कमी आ गई है, उत्थे दे लोकां नूं एनर्जी सिक्योरिटी दे विच कमी आ गई है, उत्थे दे लोकां नूं पानी तक नहीं मिल रहा कुछ लोकां पीण दे लई। तो हुण इंडिया हर एक दा दोस्त बनदा है। तो इंडिया ने की करा, इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च कराया, इंडिया ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। श्रीलंका के फाइनैंस मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर आए, बसील राजापक्षा 2 दिन की विजिट पर रहे न्यू दिल्ली के विच। इत्थे इंडिया ने श्रीलंका के नाल एग्रीमेंट साइन किए कि वह फूड और एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, वह फूड और एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़ाइकोव डी वैक्सीन नूं 7 स्टेटां दे विच अप्रूवल दी है। किन्नी स्टेटां दे विच अप्रूवल दी है? 7 स्टेटां दे विच अप्रूवल दी है, जिस दे विच पंजाब भी शामिल है। ठीक है जी। ज़ाइकोव डी वैक्सीन नूं किस द्वारा डेवलप किया गया? तो कैडिला हैल्थ केयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस द्वारा? कैडिला हैल्थ केयर द्वारा डेवलप किया गया और 12 तो 19 साल के लोगों के 12 तो 19 साल तक के लोगों के लिए यह यूज़ की जाएगी। ठीक है जी। बेसिकली अगर आप गल करते हैं, इसनों इंडिया की सैकेंड इंडिजीनियस वैक्सीन के नाम तो भी जानिया जा रहा है। ज़ाइकोव डी सैकेंड इंडिजीनियस वैक्सीन के नाम तो भी जानिया जा रहा है, क्योंकि अगर उन कुछ क्वेश्चन कुछ कहेंगे कि इस तरीके सैकेंड किस तरीके हो सकती है, तो पहली वैक्सीन जो इंडिया ने खुद इकलौते डेवलप की सी वो सी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इंडिया की पहली इंडिजीनियस डेवलप्ड वैक्सीन सी और दूसरी नामित हो रही है ज़ाइकोव डी वैक्सीन। कोविडशील्ड है, जो कोविडशील्ड है वो इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाल मिलकर डेवलप की सी। इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाल मिलकर डेवलप की सी। इस करके इसनों पूरे तरीके नाल इंडिजीनियस नहीं कहा जाता। इंडिजीनियस यानी कि इंडिया की खुद की इकलौते बनाई हुई। तो कोवैक्सीन पहली रहेगी। दूसरी ज़ाइकोव डी, इसनों mRNA वैक्सीन के नाम तो भी जानिया जा रहा है। ठीक है, इसनों नो नीडल वैक्सीन के नाम तो भी जानिया जा रहा है। नो नीडल वैक्सीन के नाम तो भी इसनों जानिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जिन्ने भी इंपॉर्टेंट वेरीएंट्स इस नाम के वेरीएंट्स देखे जा रहे हैं वो याद रखांगे कि नो नीडल वैक्सीन केड़ी है, न्यूज़ के विच है। RNA वैक्सीन या DNA वैक्सीन केड़ी है, तो ज़ाइकोव डी वैक्सीन है। तीसरा अगर आप गल करिए किन्नी स्टेट्स के विच इसनों लागू की गई है, 7 स्टेट्स। किस द्वारा डेवलप की गई है? कैडिला हैल्थ केयर द्वारा, कैडिला हेल्थ केयर। नेक्स्ट है रविंद्र जडेजा इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंगलोर बेस्ड फिनटेक कंपनी किनारा कैपिटल। किनारा कैपिटल दे ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? किनारा कैपिटल दे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ने रविंद्र जडेजा नूं ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किनारा कैपिटल का। ठीक है जी। किनारा कैपिटल कित्थे दी कंपनी है? तो एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड फिनटेक कंपनी है। फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है जी। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ पार्टनरशिप विद बवेरियन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। जो बवेरियन यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, इस दे नाल पार्टनरशिप की है कर्नाटका सरकार ने टू वर्क टुगैदर ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बेसिकली NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 दे विच लॉन्च की गई। ठीक है जी। 2020 दे विच नवी एजुकेशन पॉलिसी है जो जारी की गई है। इस एजुकेशन पॉलिसी दे विच डिफरेंट इनिशिएटिव्स ने। हुण इन्हां नूं पूरा करन दे लई, इन्हां नूं पूरे तरीके नाल इंप्लीमेंट करन दे लई कर्नाटका सरकार ने जर्मनी की बवेरियन यूनिवर्सिटी के नाल पार्टनरशिप की। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल पूछा जा सकता है कि किसने पार्टनरशिप की, किस दे नाल। फॉर एग्जाम्पल कि कर्नाटका सरकार ने कित्थे दी यूनिवर्सिटी के नाल, तो जर्मनी आ जाएगा आंसर कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी के नाल केड़ी सरकार ने पार्टनरशिप की है? तो कर्नाटका ने। ठीक है जी।
ਨੈਕਸਟ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने की करिया मेल प्लेयर ऑफ द ईयर और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किए ने। मेल प्लेयर ऑफ द ईयर विक्टर एक्सलसन नू नामित किया गया जो कि डेनमार्क तो बिलोंग करते। विक्टर एक्सलसन नू नामित किया गया जो कि डेनमार्क तो बिलोंग करते हैं, मेल प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है जी। फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर आप गल करते हैं तो साए जू जिंग जो कि चाइना तो बिलोंग करते हैं। चाइना तो भी अगर आप गल करिए ताइवान तो बिलोंग करते हैं, इसे चेंज कर लियो, चाइना के भी अगे ताइवान तो बिलोंग करते हैं साए जू जिंग। ठीक है, चाइना ताइवान को अपनी कंट्री अपने अंडर दसदा है, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग कंट्री के तौर पर डिकलेयर करता है, तो अपना आंसर इतने ताइवान रहेगा। साए जू जिंग ताइवान तो बिलोंग करते हैं, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किए गए ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हैडकुआटर कोलालंपुर मलेशिया के विच है और इसनू 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ओल्ड न्यूज़ ਨੂੰ भी डिस्कस करते चलांगे। दोबारा तो ओल्ड अप्रोच वाल चलांगे। हौली हौली आप डिफरेंट इनिशिएटिव लॉन्च करांगे ताकि सैशन ਨੂੰ होर भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके, सानू पसंद आवे सैशन। तो अगर तुसी चाहते हो कि सैशन इसी तरीके नाल कंटिन्यू रहे तो सैशन ਨੂੰ लाइक और शेयर जरूर कर दिओ और कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ दस दिओ कि तुसी किस तरीके नाल सैशन ਨੂੰ चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जो क्वेश्चन आप स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs डिस्कस करते हो, तुसी इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ चाहते हो या पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ, जिन्नी वोट्स ज़्यादा होंगे इंग्लिश या पंजाबी दियाँ उसनों गिण के उसी के बेसिस के उत्ते नैक्सट सैशन स्टार्ट करांगे। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।